Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to the Slate class of Physics A levels. As you know that we are studying the chapter of gravitational field, we have seen the concept of gravitational force, gravitational field strength. Further, we have seen the concept of gravitational potential energy, change in gravitational potential energy, and escape velocity. Right? In all the previous classes, we saw the variation of gravitational field strength of single isolated mass. But here, in this class, we will see the variation of gravitational field strength between two identical masses. Right? Identical masses मैंने इस वजह से सिलेक्ट किए बिकॉज अगर masses unidentical हों तो उसको समझना थोड़ा सा ट्रिकी होता है. तो in case of unidentical masses, you can consider Earth and Moon. लेकिन आइडेंटिकल masses के केस में वी हैव टू आइडेंटिकल अर्थ्स जस्ट फॉर आवर रेफरेंस. ठीक है, सो लेट्स कॉल दिस ऑब्जेक्ट ए एंड दिस ऑब्जेक्ट बी, या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि दिस इज अर्थ ए एंड दिस इज अर्थ बी. नाउ दिस इज कंप्लीटली हाइपोथेटिकल सिचुएशन. अगर ऐसा हो तो दो मैसेज के दरमियान या दो अर्थ्स के दरमियान व्हाट विल बी द वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, how we will draw the graphs, and what will be the forces acting on the mass between these 2 points. Right? So considering these two masses, this is the center of first Earth represented by symbol C, and this is center of the other Earth represented by symbol C once again. And this dotted line is the line along which we will see the variation of gravitational field strength. Right? Now, tell me whether the gravitational field strength is a scalar or a vector quantity. Gravitational field strength की direction होती है या नहीं होती है? But जो gravitational field is always towards the center of Earth. Because it has direction, it is a vector quantity. तो याद रखिएगा, the formula of gravitational field strength is equal to gm over r square, and it is a vector quantity. Right? तो अगर ये vector quantity है, राइट साइड पर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का पॉजिटिव साइन होगा. तो इस रिस्पेक्ट से लेफ्ट साइड पर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ऑपोजिट साइन. तो लेफ्ट साइड पर आप इसका माइनस साइन कंसिडर कर सकते हैं. राइट? नाउ दिस पॉइंट इज राइट एट द मिडल ऑफ दीज टू अर्थ्स या दीज टू मैसेज, एंड आई एम कॉलिंग दिस पॉइंट एक्स. Right? Okay. Let's place a small mass near the surface of Earth A. अगर आप इस small mass को near the surface of Earth A place करेंगे, इसके ऊपर किस साइड पर net force लगेगी? It will be attracted towards Earth A, so the force will act towards left. तो इस केस में the gravitational field strength is towards left hand side because the force is acting towards left. So gravitational field strength का क्या साइन होगा according to the conventions that we have selected? इस पॉइंट पर gravitational field strength का नेगेटिव साइन होगा. Similarly, when the object is placed at the surface of object B, तो इसके ऊपर net force कितनी लगेगी? इसके ऊपर भी net force due to mass B लगेगी, and that will be towards right because X से right side पर dominant attractive force किसकी है? Earth B की. So if the force is acting towards right, the gravitational field strength will also point towards right hand side. तो Earth B के केस में gravitational field strength is pointing towards right hand side, और right hand side पर gravitational field strength का क्या साइन होता है? ठीक है, पॉजिटिव साइन होगा. Okay, also you know that right at the middle of Earth, the value of gravitational field strength is 0. And from the center of Earth to the surface of Earth, gravitational field strength varies linearly. Right? What will be the value of gravitational field strength right in the middle, right at point X? Now, as you know that gravitational field strength is equal to gravitational force per unit mass. Right in the middle, both Earths are attracting the mass. यहाँ पे अगर आप कोई mass place कीजिएगा, तो both Earths are attracting the mass with the same force, with the equal force. That's why the net force right in the middle will be 0. तो अगर force 0 है तो force per unit mass की क्या वैल्यू होगी? इस पॉइंट पर force per unit mass की वैल्यू भी 0 होगी. So याद रहे, right in the middle the gravitational field strength will be 0.
ठीक है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो है तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी जीरो होगी, बिकॉज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। तो अब आपको एक क्लियर आइडिया हो गया, पॉइंट एक्स से राइट साइड पर जो है वो अर्थ बी की डोमिनेंट ग्रेविटी है, लेफ्ट साइड पर अर्थ ए की डोमिनेंट ग्रेविटेशनल फोर्स है, नेट फोर्स है, और राइट इन द मिडल द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज जीरो. So now we are in a situation to sketch a graph of gravitational field strength of these two masses. याद रहे कि जब आप इसकी एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू माइनस में भी होगी, प्लस में भी होगी. So here I am drawing graph for the gravitational field strength and I am taking this point as a reference point, the center of Earth A. Right? Now here you have your x-axis. The quantity along y-axis is gravitational field strength measured in newtons per kg, right? And the quantity along x-axis is distance in meters. मैं यहाँ पर कुछ reference points draw कर रहा हूँ. These are few reference points. This is surface of Earth A. This is surface of Earth B, right? This is center of Earth B, and there is one more point which lies right in the middle of two Earths, and that is point X. Now, both planets will have equal gravitational field strength at their surfaces. Why? Because दोनों masses भी identical है, उनके radii भी identical है, so at the surface they both have same gravitational field strength. But एक के लिए पॉजिटिव साइन है तो दूसरे के लिए नेगेटिव साइन होगा, बिकॉज देयर ग्रेविटीज आर पॉइंटिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, सो फॉर अर्थ ए द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इट्स सरफेस इज मैक्सिमम एंड नेगेटिव, सो आई प्लेसिंग अ पॉइंट हियर, maximum negative. At the surface of Earth B, the value of gravitational field strength is once again maximum but positive, so I'll place a point here. Now point out the position where the gravitational field strength is zero. Gravitational field strength is zero at the middle of Earth's. तो एक पॉइंट ये हो जाएगा, एक पॉइंट ये हो जाएगा. Identify one more point where the gravitational field strength is zero. That point is the middle point of these two Earths. मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पर नेट फोर्स जीरो है तो यहाँ पर ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ भी जीरो होगी. ठीक है, अब हमने इस वेरिएशन को ज्वाइन करना है. ठीक है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है. फॉर दैट आप ये देखें कि विद इन द अर्थ द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस लीनियरली फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू द सरफेस ऑफ अर्थ. ठीक है, तो ये अर्थ के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ लीनियरली वेरी कर रही है और ये भी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ लीनियरली वेरी कर रही है. ठीक है, और आउटसाइड द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ फॉलोज विच लॉ? इनवर्स स्क्वायर लॉ. इनवर्स स्क्वायर लॉ. सो आपने इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है लाइक दिस, इनवर्स स्क्वायर लॉ के अकॉर्डिंग, राइट? सो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स ग्राफ, yet this graph represents the gravitational field strength between the two masses, right? अच्छा, अब here is a situation, और ये situation थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होगी, आपने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है. Let's suppose कि you have a ball and you are standing at surface of Earth A and you want to land this ball at the surface of Earth B. तो आप इसको यहां से थ्रो करेंगे विथ सर्टेन वेलोसिटी, राइट? इन दिस डायरेक्शन विथ सर्टेन वेलोसिटी v. तो बच्चों अगर आप इसको लॉन्च करेंगे, अगर तो ये वेलोसिटी इनफ हुई सो दैट दिस बॉल कैन रीच द बैरियर ऑफ पॉइंट x, अगर ये पॉइंट x तक पहुंच जाए तो ये अर्थ बी तक भी पहुंच जाएगी, बिकॉज जैसे ही पॉइंट एक्स को क्रॉस करेगा तो अर्थ बी की अट्रैक्टिव फील्ड स्टार्ट हो जाएगी, वो इसको अट्रैक्ट कर लेगी. लेकिन अगर इस पॉइंट पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी कम हुई सो दैट इट इज नॉट एबल टू क्रॉस पॉइंट एक्स, तो ये बॉल जाएगी, एक्स को रीच किए बगैर ही वापस आ जाएगी, बिकॉज
इसकी काइनेटिक एनर्जी इनफ नहीं थी टू ओवरकम द बैरियर। मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, दिस इज अ स्मॉल माउंटेन पीक। आपने बॉल को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक रीच करवाना है, ठीक है। तो यहां पर आप बॉल को किस स्पीड से रोल करेंगे? आप इस स्पीड से रोल करेंगे कि वो इस पीक तक पहुंच जाए, ठीक है। अगर पीक को क्रॉस कर लेगी तो ग्रेविटी विल अट्रैक्टेड टूवर्ड्स पॉइंट बी, ठीक है। तो यहां पर भी एक सिमिलर सिचुएशन है। आपने इसको इस वेलोसिटी से लॉन्च करना है सो दैट इट इज एबल टू ब्रेक द बैरियर ऑफ पॉइंट एक्स। जैसे ही एक्स को क्रॉस करेगी, बेशक उस टाइम पर वेलोसिटी जीरो भी हो जाए, मिनिमम भी हो जाए, लेकिन अपने मोमेंटम की वजह से थोड़ा सा आगे निकल जाएगी, तो अर्थ भी जो है इसको खुद से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, राइट। सो दिस वेलोसिटी मस्ट बी एबल टू ब्रेक द बैरियर ऑफ पॉइंट एक्स, ठीक है। जैसे ही वो एक्स से आगे निकलेगी, पॉइंट बी खुद अट्रैक्ट कर लेगा। तो जब आप सरफेस ऑफ अर्थ ए से इस ऑब्जेक्ट को लॉन्च कर रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी इतनी इनफ होनी चाहिए सो दैट इट इज एबल टू जस्ट क्रॉस पॉइंट एक्स, अदरवाइज ये रिटर्न बैक हो जाएगी, ठीक है। अगर आपने इसको इस वेलोसिटी से समहाउ लॉन्च कर दिया तो आप मुझे बताएंगे कि इस डायरेक्शन में जाते हुए व्हाट विल बी द वेरिएशन ऑफ इट्स एक्सेलरेशन। देखिए, मिड पॉइंट तक अर्थ जो है इसको पुल बैक कर रही है और दूर जाते हुए वेलोसिटी भी डिक्रीज करेगी बिकॉज इट इज इन द रिपल्सिव फील्ड ऑफ अर्थ ए। तो दूर जाते हुए इट विल डीसेलरेट, और क्योंकि अर्थ से डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगी, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कम हो जाएगी। सो इन दिस अवे डायरेक्शन इट इज गोइंग विद डिक्रीजिंग डीसेलरेशन, राइट। इट इज डिक्रीजिंग डीसेलरेशन। तो जब भी ये इस पॉइंट पर पहुंचेगी इट विल हैव मिनिमम वेलोसिटी। नाउ एज पॉइंट एक्स इज क्रॉस्ड इट विल एंटर द अट्रैक्टिव फील्ड ऑफ अर्थ बी, और अर्थ बी इसको पुल करेगी। देखिए, पुलिंग इज टूवर्ड्स राइट एंड इट्स मोशन इज ऑल्सो टूवर्ड्स राइट। तो जो इसका फोर्स है वो इसकी सपोर्टिव फोर्स है। सो ऑनवर्ड्स फ्रॉम पॉइंट एक्स टू द सर्फेस ऑफ अर्थ बी इट विल accelerate. So onwards it has acceleration, और कौन सी acceleration होगी? Because Earth से distance reduce हो रहा है तो gravitational force will increase. So in this direction it has increasing acceleration. Increasing acceleration. और याद रहे कि अगर ये पॉइंट एक्स के बैरियर को क्रॉस करके आगे जाती है, जिस वेलोसिटी से आपने लॉन्च किया था उसी वेलोसिटी से अर्थ बी की सरफेस पे रीच करेगी, बिकॉज द मैसेज आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल, ठीक है। तो शुरू में इसकी मैक्सिमम स्पीड थी, सो एट द सरफेस ऑफ अर्थ ए द बॉल हैज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू दिस मैक्सिमम वेलोसिटी। सो अर्थ ए की सरफेस पे काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। तो कौन सी एनर्जी मिनिमम है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। और आपको पता है कि सरफेस ऑफ अर्थ पे द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, ठीक है। तो सेंटर में जाके पॉइंट एक्स पे जाके इसकी मैक्सिमम डिसेलरेशन हो गई थी। सो इस मिड पॉइंट पर इट हैज मिनिमम वेलोसिटी, सो इट हैज मिनिमम काइनेटिक एनर्जी एंड मैक्सिमम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और इससे ऑनवर्ड दोबारा से एक्सेलरेशन स्टार्ट हुई थी। सो एट दिस सरफेस काइनेटिक एनर्जी वंस अगेन इंक्रीजेस टू मैक्सिमम वैल्यू and potential energy drops. So potential energy will minimum at surface of Earth B, right? अच्छा, अब आप acceleration और deceleration को इस ग्राफ के साथ रिलेट करें। You know that F equals ma. आपको ये भी पता है कि जो वेट होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, you can write it as mg. तो अगर आप इस इक्वेशन में से g को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाते हैं, G will be equal to gravitational force per unit mass, ठीक है। तो बच्चों आप यहां पर देखें, यहां पर G जो है वो एक्सेलरेशन ही के तो इक्वल आ रहा है। तो ये सारा का सारा ग्राफ इज गिविंग यू द ट्रेंड ऑफ एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन, ठीक है। फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ ए टू द मिड पॉइंट डिसेलरेशन थी, सो डिसेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव साइन। आप देख सकते हैं कि यहां पर जो G है उसका साइन नेगेटिव। ऑनवर्ड्स क्या था?
onwards from x to the surface of earth b, ball was accelerating, तो acceleration थी, acceleration is represented by positive sign. Further आप ये भी देख सकते हैं कि it was decreasing deceleration. Decreasing deceleration का मतलब ये है कि ग्राफ का gradient reduce हो रहा है, which is clearly seen in this graph that the gradient of this graph is reducing up to point x. और इससे onward there was increasing acceleration. You can clearly see कि इससे onward जो gradient जो है वो increasing. So this graph is giving you a clear trend of acceleration. जो वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन है आपको इस ग्राफ में परफेक्टली नजर आ रही है. ठीक है, हमने ये ग्राफ एक्सेलरेशन के हिसाब से नहीं बनाया था, हमने तो ऑन द लॉजिक ऑफ वेरिएशन ऑफ जी के हिसाब से बनाया था. बट इट टर्न्ड आउट दैट दिस ग्राफ इज गिविंग यू कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ हाउ एक्सेलरेशन इज वेरिंग बिटवीन दीज टू पॉइंट्स. ठीक है, तो याद रखिएगा जो जी की वेरिएशन होती है बिटवीन टू पॉइंट्स, that variation is exactly equal to the variation of acceleration between the 2 points. So ये graph is also giving the trend of gravitational force and gravitational acceleration of the object between these 2 points. Right? Now, how the gravitational potential energy is varying between these 2 points. You know that in attractive field, the gravitational potential energy is always negative. Let's see the variation of gravitational potential energy between these 2 points. For that, we will sketch this graph. So the quantity along x-axis will be distance and the quantity along y-axis will be gravitational potential energy. Right? So आप x-axis को label करेंगे gravitational potential energy in joules और y-axis के long, x-axis के long distance in meters. Right? Now from the diagram above, you can see कि midpoint पर gravitational potential energy is maximum. Right? Maximum potential energy है, लेकिन potential energy का sign क्या होता है? Negative. तो इस midpoint के ऊपर gravitational potential energy maximum with negative sign है, तो इसका मतलब ये है maximum चीज वो होती है जो negative में कम हो. ठीक है, so this is the point. और extremes पर क्या वेरिएशन है? extremes पर gravitational potential energy is minimum. ठीक है, तो इसका मतलब ये है extremes पर जो है gravitational potential energy is more negative. ठीक है, so at the surface of earth A and at the surface of earth B, the variation of gravitational potential energy is like this कि extremes पर जो potential energy है, that potential energy is minimum, so that will be represented by more negative values. Now, you will join these 3 points, this point 1, point 2 and point 3 with the help of a smooth curve to show the variation of gravitational potential energy between the points. So that curve will be like this. This is the variation of gravitational potential energy between these 2 points. ठीक है, अब पॉइंट x पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ये है, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट x, और पॉइंट A पे, सरफेस ऑफ अर्थ A पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ये है. तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप ऑब्जेक्ट को किस मिनिमम वेलोसिटी से लॉन्च करें दैट विल बी एबल टू रीच अर्थ B? फॉर दैट यू हैव टू क्रॉस द बैरियर ऑफ विच पॉइंट? फॉर पॉइंट x. ठीक है, तो उसके लिए बच्चों आप लोगों ने चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कंसिडर करनी है बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड बिटवीन द बैरियर पॉइंट विच इज पॉइंट एक्स. तो आप ये लिखेंगे द काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड is equal to change in gravitational potential energy between point x and point A. ठीक है, तो आप क्या करेंगे? Further you will write kinetic energy required is equal to difference of potential energy is equal to potential energy at point x minus potential energy at point A. ठीक है, यहां से आपके पास वो minimum velocity आ जाएगी which is required to launch so that object is launched from point A or the surface of A such that it is able to reach the surface of B. ठीक है, तो अगर अनआइडेंटिकल masses हो उस सिचुएशन को भी आपने इसी तरह से ही डील करना है. ठीक है, सो आपने इसको किस वेलोसिटी से लॉन्च करना है?
so that it is able to cross the barrier. आगे तो मसला ही कोई नहीं है, आगे अर्थ बी की ग्रेविटेशनल फील्ड इसको खुद अपनी तरफ पुल कर लेगी, बिकॉज उससे ऑनवर्ड जो है अर्थ बी की अट्रैक्टिव फील्ड स्टार्ट हो जाएगी, सो इट विल फर्दर स्टार्ट एक्सेलरेट, राइट. these are some difficult concept जिनको हम पास्ट पेपर्स में डिटेल से क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करेंगे, बट आई एम वेरी होपफुल कि आपको ये सारी चीजें बड़ी डिटेल से समझ आएंगी, right? So I'm looking forward to see the next video in which we will study satellites, time period of satellites, and energies of satellites. So stay tuned and do subscribe, Slate. Thank you.